Okay, let's see. This question was given in homework. In this, I gave you the hint. Horizontal component should be equal. Plane is already flying horizontally. Its velocity should be equal to horizontal component of shell. Equate करके solve कर लो, उससे आपको you will get the condition of collision. Okay, let us see. Let's see. Just a minute. Let me remove this already written. All right. So we can see this. Yeah. Can you see? UX, velocity of plane. Already it is, it should be equal to, I mean, horizontal component should be equal to velocity of plane, where UX is the horizontal component of shell and U is the velocity of shell. All right. तो दोनों कंपोनेंट मतलब ये प्लेन की वेलोसिटी के बराबर होने चाहिए. जस्ट मिनट है. या तो both should be equal है. देखें can you see it now properly? UX is the horizontal component, U is the velocity of shell and VP is the velocity of plane है ना. यहाँ पे लिखेंगे VP velocity of aeroplane. So angle they have taken from the, now what is the condition? UX should be equal to, therefore, okay, तो UX क्या होगा? U cos theta, this U cos theta, but theta is 90 minus alpha because other angle is given alpha. So in place of theta we will write 90 minus alpha, that is U cos alpha, that is UX, that's nothing but a UX. That's nothing but a UX. ठीक है, तो UX हमने निकाल लिया, इसको पहले हटा देते हैं. Now we will equate. Now we'll equate it with the velocity of plane. Now UX should be equal to velocity of plane. UX is nothing but a U sin alpha. Velocity of plane is nothing but 200. Both equated and solved. What we get is alpha is equal to sin inverse 1/3. यहाँ से आपको alpha मिल गया. That should be, therefore, now you see, देखो यहाँ पर I gave you the hint, horizontal component equal होनी चाहिए. इसका horizontal component UX निकाल लिया. That is nothing but a U sin alpha because alpha is here. It should be equal to velocity of plane 200 है ऐसा यूनिट में. तो यहाँ से हमें अल्फा मिल गया sin inverse of 1/3. Got it? This is the condition so that projectile will hit the aeroplane. इसमें कोई doubt? Do you have any doubt in this part? This is the mandatory condition, must condition. Now second part is also there. What minimum altitude should the pilot fly the plane? With this acceleration, but this is the condition. This at this angle, it is going to hit. So according to this angle, what is the maximum height? Above that, it should fly. For this angle, maximum height we can find out using the formula of maximum height. Maximum height का formula लगा दीजिए, देखिए. Can you see? Maximum height का formula लगाया हमने. U square sin square theta. Theta की value 90 minus alpha है. That we are putting. Now
it is becoming cos square alpha. So यहाँ से if we know sin alpha, okay, converting cos square alpha into sin square alpha, that is 1 minus sin square alpha. Other values are known. Sin square alpha की value भी 1/9 हो जाएगी. Put it, it is coming 1600. That is nothing but a 16,000 है ये. That is nothing but a 16 kilometer. Okay. So this is the height above which this is the minimum height. If it is flying, shell will just may come very close to it, or just above this plane should fly, because it will reach up this 16 kilometer. 16 kilometer से थोड़ा सा ऊपर 1 centimeter ऊपर. That's all. So answer will be 1600 kilometer. In this case, I mean 16 kilometer, that is 16,000 meter. In this case, just shell may just able to touch it. It will not harm, because its vertical velocity will become 0 in that case. Okay. So at this height, aeroplane can fly. Clear? Yeah. Clear to everyone? Yes, sir. So this is your textbook problem. You are supposed to know this. This is important condition. Horizontal component of shell should be equal to velocity of the plane. This is the condition. Can you see it? We'll see further. Any doubt you have, you can just ask your doubt if you have any. In this chapter, what we are seeing, projectile questions. We have seen the 3 important relations in projectile. What are those 3 important relations? First one for the path, then time period, time of flight, then maximum height, then range. So these 3 important relations we have done, and we are doing the numericals for that. Horizontal projectile also some. Meanwhile, we have seen one more question is there like this. You see, path can also be given by this relation. Prove that path in projectile is also given by this relation. ये हम जो relation में derive किया था ये वाला, उसको हम इस form में convert कर सकते हैं. Yes, we can do it. So let's see. We have done this using this relation, which we have done beginning of this projectile, and we know. इसको ऐसे लिखेंगे. We know. एक मिनट. So we can write, we know y is equal to x tan theta and these and x square. यहाँ पे r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे r लाना है ना, तो r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और ये r तो ऐसे रहने दीजिए, ऊपर वाले r की वैल्यू पुट कर दो. मोस्ट ऑफ द टर्म्स गेटिंग कैंसल्ड हियर. So finally, you will be left with tan theta only. Other terms will go, or tan theta can be taken out. It becomes x tan theta 1 minus x upon r. So this is the relation. This is the other path apart from the first path we have seen. So इस तरह से भी they may ask you. Sometimes this is just question. You may come across this question somewhere. Clear? So this is the path, and this is also the path, because y and x. But इससे हमें we cannot say this is parabola. This is equation of parabolic path. This is other form of the question. Path of the projectile. ये आप लोगों को याद है, first derivation we did it. Path of the projectile is parabolic. We did it beginning of that equation of projectile.
that we have converted it into this format because it was asked to prove this. Okay. Our test is postponed to the next Monday because some of the students could not complete those who joined late could not complete the third chapter. Therefore, it will be on the next coming Monday. ठीक है, तो देखते हैं अभी और क्या है आगे इसमें क्वेश्चंस. इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस वी कैन स्किप, they can be done for JEE student only. So we are not doing inclined plane. Now, relative motion in 2 dimension. Earlier we have seen relative motion in 1 dimension. Relative motion means if observer is also moving, है ना, ऑब्जर्वर जो है वो भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो भी मूव कर रहा है. जनरली व्हाट वी सी, normally we are at the rest on the ground and see the moving object and write their equations. But if we are also moving and suppose we are in a certain train and observing the other train, passengers of other train, so then the motion observed will be different from those who are observing from the ground. So such situations are called relative motion. In relative motion, or earlier we have seen in 1 dimension motion, both the object was moving in same direction or in opposite direction. Now in this chapter we can see that object moving in different direction. One is going like this, other is going like this, or like this, or like this. First chapter में हमने क्या देखा था, both are moving in same direction, or at the most they are moving in the opposite direction. Now in 2D, both may move in at any angle, apart from 0 and 180, they can move in 90-degree angle or 60-degree angle. So let's see. Formula remains same. Whatever we have seen in that formula तो same ही रहेगा. देखो जो 1 dimension में था. If 2 objects A and B are moving with the velocity VA and VB as seen from the ground with respect to common frame of reference. मतलब common frame of reference means it can be ground also. Ground से दोनों का ground से speed है. With respect to ground लिख सकते हैं इसको, simple लिख देते चलो. With respect to ground. ठीक है. All right. Then velocity of A with respect to B is given by VAB. That is VA minus VB. Velocity of A with respect to B. मतलब क्या है? Velocity of A as seen by B, as seen by observer B. A is the moving object, B is the first train and B is the second train. So velocity of train A seen by train B, so VAB, that will be called VAB. That is equal to VA minus VB. You have to write velocity of train A minus velocity of train B. जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है जिस ट्रेन में बैठ के या कार में बैठ के या एरोप्लेन में, उसका माइनस करना है. जनरली हम ग्राउंड में रहते तो ग्राउंड तो रेस्ट पे रहता है, तो इसलिए माइनस का पॉइंट मिस हो जाता है. बट अगर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है दूसरे ट्रेन में या प्लेन में बैठ के, तो अपनी वेलोसिटी को माइनस करना है ऑब्जर्वर को. दैट इज द रूल, दैट इज द फार्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. That is the formula of relative velocity. We can check it whether it is correct or not. We can just see. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, train A is going with 60 km per hour, train B is also following with 60 km per hour. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 60, ये भी 60, तो 0 हो जाएगा. What passenger of train B will feel? A is at rest. Train A is at rest because both are moving in same direction with the same speed. I mean same velocity. तो therefore ऑब्जर्वर जो है उसकी वेलोसिटी माइनस हो जाती है. ठीक है. तो सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, VBA will be VB minus VA. And from these two relation we can see this is 1, this is 2.
from 1 and 2, what we can say, यहाँ से देखो VAB is equal to minus of VBA, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पर A आ जाएगा, ये B हो जाएगा. This is nothing but this value, है ना? तो both are equal and opposite. VAB is equal to VBA but opposite direction में. अगर B को A इधर जाता हुआ दिख रहा है तो A को B इधर जाता हुआ दिखेगा. ठीक है. मैग्नीट्यूड में both will be equal. Both will be equal in magnitude. If A is feeling that B is moving with the 40 km per hour, and then B will also feel A is going with the 40 km per hour in the opposite direction. That's all. ठीक है. Now you know vector, ये क्या है? Vector quantity. The vector subtraction will be coming into action. Vector subtraction we have learned. Do you remember the formula for vector subtraction? क्या था formula बोलिए? Vector subtraction का formula minus 2ab cos theta. Under theta root is what? Under root. Theta is what? Theta is what? angle between A and B. Yes, theta remaining the angle between A and B. VA and VB के बीच में एंगल दिया होगा तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है VAB. तो ये फार्मूला और इसका मॉड जो होगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B, आई मीन VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VAB cos थीटा. इससे निकालना पड़ेगा हमें, या फिर आई कैप जे कैप में दिया है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं. If vector is given in terms of unit vector, then you can do it directly minus, है ना? And after that you can find out the magnitude. So let's see, जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझने के लिए let's see this question. If car is going towards east with the speed 10 meter per second and car B is going towards north with the same speed, find magnitude of relative velocity of A with respect to B. That is VAB. So can you find out VAB? And root Mod 2. and root 2. How do you do this? Sir, vector subtraction. वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगा दिया, या तो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर आई कैप जे कैप में भी लिख सकते हैं, है ना? दोनों मेथड से आएगा. आई कैप जे कैप, नॉर्थ की डायरेक्शन आई कैप ले लीजिए, नहीं साउथ की. ओके, ऐसे देखो, एक तो ये मेथड है, डायरेक्ट लिख सकते हैं. देखो, लेट मी मेक इट स्लाइटली बिगर. कैन यू सी? VA देखो, VA इज 10, दोनों के मैग्नीट्यूड 10 है और एंगल 90. देखो यहाँ पे, लेट मी पुट इट प्रॉपर्ली. तो VA is 10 meter per second. VB is also 10 meter per second. और theta is 90. तो यहाँ पर जो फार्मूला आएगा, देखो पूरा फार्मूला लिख लेते हैं पहले एक बार. लेट्स डू इट प्रॉपर्ली. VAB will be nothing but a VA minus VB. वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB इंटू कॉस 90. ये पूरा टर्म तो जीरो ही हो गया, कॉस 90 वाला है. तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. तो 10 बाहर आ गया, √2 बच जाएगा अंदर. 10 √2. यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड ओनली. गॉट इट? और यू कुड हैव रिटन आई कैप एंड जे कैप. एंड इसको आई कैप लिखते हैं, इसको जे कैप लिखते हैं. तो VAB would have been VA minus 10 आई कैप minus 10 जे कैप. उसका मॉड निकाल लेते हैं. आई कैप एंड जे कैप के टर्म में रहता है तो मॉड कैसे निकलता है? कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं. ऑलरेडी वो 90 डिग्री पे रहते हैं, कॉस वाला टर्म तो जीरो ही हो जाता है. तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आ जाता है. सेम थिंग वुड हैव बीन देयर.
ठीक है, सबको समझ में आया? कुड यू गेट दिस? कुड यू गेट दिस? Yes, sir. You can ask your doubts if you are finding difficulty. You can just ask. ये फार्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, VA is equal to VA minus VB, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू, ये फार्मूला लगा दिया। बट मैग्नीट्यूड पूछा है तो मॉड में वेक्टर डिफरेंस का फार्मूला ये होता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। तो थीटा being 90 will make it 4 times 0. Because the initial direction was east, then it is going towards north. ठीक है, so there are some question of rain and umbrella problem or boat and river problem are given. तो थियरी थोड़ी सी देख लेते हैं उसकी, बिकॉज थोड़ा सा बेसिक आइडिया वी शुड हैव बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना। तो रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम में अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सपोज जब मैन और वुमन इज मूविंग विद द अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला लेके जब रोड पे जाते हैं कभी, तो हमें एंगल थोड़ा सा, अगर रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो देन आल्सो व्हेन यू आर एट रेस्ट यू विल होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस वर्टिकली, ऐसे अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेंगे। बट व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, व्हाट यू फाइंड, यू हैव टू स्लाइटली टिल्ट। अगर मूविंग फास्ट है ना, सपोज टू व्हीलर पे बैठ के जा रहे छाता पकड़ के, तो थोड़ा एंगल आगे करना पड़ता है। क्यों? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब रेन इज अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन आएगी मूविंग कंडीशन में, उधर होल्ड करना है अम्ब्रेला। ये नहीं कि वर्टिकली होल्ड करना है तो बिक जाएंगे ना। तो वीआरएम की डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उस डायरेक्शन में होल्ड करना है। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल वी आर द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीएम इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। So velocity of rain with respect to man will be VRM, that is VR minus VM. तो रेन मैन के रिस्पेक्ट में कौन से एंगल पे आ रही है, उस एंगल पे हमें अम्ब्रेला होल्ड करना है ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, जब फास्ट मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ता है हमें। वो डायरेक्शन नहीं रहती जो स्टैंडिंग कंडीशन में है। तो अभी जैसे न्यूमेरिकल है, लेट्स सी व्हाट न्यूमेरिकल इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। जैसे ये है, देखो, दिस इज द क्वेश्चन, रेन इज falling vertically with the speed 30 meters per second. Woman rides the bicycle with the speed 10 meters per second in the north to south. She's going in south direction. So what is the direction in which she would hold her umbrella to protect herself? So let us see. देखो ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, वर्टिकल डायरेक्शन ये है। तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, वी आर इज गिवन 30, ठीक है, और द वुमन इज गोइंग दिस साइड, साउथ जा रही है ना। तो वी आर की वैल्यू लिख लो, वी आर इज 30, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 30 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ वुमन इज वी डब्ल्यू कर देते हैं उसको, कितना दिया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टुवर्ड्स साउथ है ना। शी इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ। तो अम्ब्रेला किधर होना चाहिए, वी आर है ना। अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, नीचे लिखा है कि हाँ चलो मैंने लिखा हुआ है, शुड बी हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वी आर एम वेलोसिटी। आई कैप जे कैप से किया मैंने, ठीक है, विदाउट आई कैप जे कैप से करके देखते हैं, विदाउट आई कैप जे कैप। तो अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वी आर एम।
VR मतलब VRW हो जाएगा, या बाईसाइकिल लिख देते हैं उसकी, बाईसाइकिल की स्पीड लिख दो तो VB लिख देते हैं। अम्ब्रेला should be held in the direction of relative velocity of rain with respect to bicycle. That is VRB. तो VRB क्या होगा? VR माइनस VB। तो बाईसाइकिल इधर जा रही है साउथ की तरफ, तो माइनस मीन्स इधर करना है, तो वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल दिस साइड, तो दैट इज माइनस। मतलब माइनस क्यों किया? बिकॉज शी वाज गोइंग दिस साइड, यहाँ पे माइनस हो गया, बाईसाइकिल उसकी, शी वाज ड्राइविंग बाईसाइकिल दिस साइड, तो ये माइनस हो गया इधर, बट मैग्नीट्यूड वही रहेगा 10, शी वाज राइडिंग विद द 10, तो ये 10 रहेगा, तो ये नीचे मैंने 10 लिखा है, देखो हमें तो एंगल चाहिए, तो उसमें माइनस नहीं चाहिए, बस वी नीड द एंगल। तो वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल इज 10, तो ये वेक्टर है ये वाला, ये नीचे आ गया, और रेन इज कमिंग लाइक दिस, तो ये 10 थीटा कितना होगा बताइए? देयरफॉर 10 थीटा विल बी हाउ मच? VB velocity of bicycle divided by velocity of rain, 10 by 30, that's 1 by 3, so theta is equal to 10 inverse of 1 by 3. 10 inverse 1 by 3, you have to see the log table, it will be coming 18 degree, 18 degree आ जाएगा। लॉग टेबल में नेचुरल टेंजेंट में जाइए, ठीक है, तो 18 डिग्री देखो, अभी उसको 18 डिग्री, देखो रेन वाज फॉलिंग, अगेन यू अंडरस्टैंड दिस, रेन वाज फॉलिंग लाइक दिस, शी वाज गोइंग लाइक दिस, तो उसको एंगल अभी अम्ब्रेला यहाँ से, ये थीटा आ गया अपना 18 डिग्री, तो यहाँ से ऐसे ऐसा अम्ब्रेला को ऐसे हेल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा लाइक दिस, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, तो 18 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल टुवर्ड्स साउथ, कैसे लिखेंगे? 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड्स साउथ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? देखो उसको इन द डायरेक्शन विच, इन द डायरेक्शन शी इज मूविंग इस तरफ, तो एंगल भी उसको अम्ब्रेला भी इधर ही व्हेन शी इज स्टैंडिंग, सपोज रेस्ट पर है, तब तो अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन, बट व्हेन शी इज गोइंग लाइक दिस, तो अम्ब्रेला भी आगे लाना पड़ेगा लाइक दिस। फास्टर शी मूव, मोर एंगल शी हैज टू मेक, और सपोज उसने अपनी स्पीड 30 कर दी, तब एंगल कितना आएगा? ये भी 30 हो जाएगा, तो ये भी 31, 45 डिग्री इफ शी इज राइडिंग बाय फास्टर, है ना? 30 इज नॉट पॉसिबल ऑन बाईसाइकिल, ठीक है, बट इमेजिन करते हैं शी इज इंक्रीजिंग हर स्पीड, तो 30 कर दी, तो ये भी 30, ये भी 30, तो 45 डिग्री पे लाना पड़ेगा उसको, और एंगल आगे लाना पड़ेगा, गेटिंग ना? और फास्ट कर दी तो और एंगल इधर, इनफाइनाइट कर दी तो हॉरिजॉन्टल पकड़ना पड़ेगा अम्ब्रेला। इमेजिनरी सिचुएशन है ना, इनफाइनाइटली फास्ट शी इज मूविंग, बाईसाइकिल इज इनफाइनाइटली फास्ट मूविंग, तब क्या आएगा? यहाँ पे इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट 90 डिग्री, थीटा विल बी 90, अम्ब्रेला विल बी होल्ड लाइक दिस, will be held like this, which is not possible, practically not possible. और जीरो कर दिया तो वर्टिकल लाना पड़ेगा, because rain will be up coming vertically, if she is not moving then it will be relative velocity will be vertical. Got it? बोलिए, इसमें डाउट है किसी को? जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उधर ही टिल्ट करना है, फास्टर यू मूव मोर एंगल यू हैव टू सेट फॉर अम्ब्रेला। क्लियर और नॉट? बोलिए। तो आंसर इज गिवन about 18 degree with the vertical towards south. Question number 12 exercise ka. Anybody is comfortable with this or you want to ask it
अगेन Clear, बोलिए, sir. क्लियर टू एवरीवन? सर अगेन अगेन तो क्या क्या रहा है, क्या सर किया इसने? मेरे को हाँ एक चीज में डाउट था सर, जब भी बोलिए। अपन को एंगल निकालना होगा तब अपन वी आर बी लेंगे क्या, वी बी आर नहीं ले सकते? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन, तो यहाँ पे बाइसाइकिल या लेडीज इज मूविंग ऑन द बाइसाइकिल, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जिस कौन ऑब्जर्व कर रहा है या कौन मूव कर रहा है, तो वी आर आना चाहिए पहले। रेन किस एंगल से आ रही, किस स्पीड से, किस एंगल से आ रही है ऑब्जर्वर की तरफ, वी कैन चेंज द सीक्वेंस है ना। रेन से प्रोटेक्ट करना है तो रेन को देखना है ना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितनी, किस एंगल पे रेन आ रही है। ओके सर। ठीक है। there is one more question, सॉलिड एग्जांपल पे आते हैं। एक सॉलिड एग्जांपल है सिमिलर, थोड़ा सा अलग है, देखिए, लेट अस सी। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है ये, इट इज नॉट द, इन दिस ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग इन दिस, है ना, देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, लेकिन विंड इज, दिस इज द सॉलिड एग्जांपल। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड 35, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज 35 एंड विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर some time with the speed 12 meter per second in east to west, है ना, इधर वेस्ट की तरफ आ रही विंड, विंड वेलोसिटी इज टुवर्ड्स वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस साइड इज वेस्ट, तो विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है? 12। सब इसकी, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ओके, शैल आई राइट? ओके, वी वी डब्ल्यू इज वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना, चलो लिख देते हैं नीचे। रेन का तो ऑलरेडी हमने लिखा था, velocity of wind with respect to ground। जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में लेना पड़ता है हमें। velocity of wind is 12 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ है? ईस्ट टू वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। ईस्ट अगर हम इधर ले रहे हैं तो वेस्ट अपोजिट है, जनरली ईस्ट इधर ही लेते हैं ना, लेट मी राइट। तो विंड ऐसे आ रही, रेन ऐसे आ रही, तो दोनों की अभी यहाँ पे नोबडी इज मूविंग। देखो, इन विच डायरेक्शन should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? Boy is not moving now. So what is happening here? He should hold the umbrella in the direction of resultant velocity of wind and rain. रेन को तो रेन ड्रॉप्स ऐसे आएंगी, विंड उसके ऊपर ऐसे एक्ट करेगी, तो उनकी दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे आएगी, इन दोनों का वेक्टर सम। विंड को हम इधर शिफ्ट कर दें, विंड नीचे ले आए, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, तो विंड ऐसे आ रही और रेन ऐसे आ रही, तो उनका रिजल्टेंट कैसे होगा? इधर। तो बॉय शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन एंड विंड। अभी मूव नहीं कर रहा वो, तो विंड क्या है, जिधर विंड आएगी उधर ड्रॉप्स को उस तरफ फोर्स लगाएगी, तो दो दो वेलोसिटीज है, एक ये और एक है, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो टेन थीटा क्या होगा, विंड वेलोसिटी कितनी है आपकी 12 और रेन वेलोसिटी कितनी है 35, तो 12/35, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12/35। ये ये 12/35 कितना आएगा? एक मिनट, कुछ पॉइंट, ओके, आंसर इज गिवन 0.343, दैट्स क्लोज टू 90 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट।
Sir, you are not audible. Recording in progress. Okay. Listen again this one. Let me do it again. The rain is coming down vertically with the 35 and the woman is riding towards west with the 12. So she should hold the umbrella in the direction of relative velocity with respect to bicycle. VR minus VB. So VB is this side, minus VB will be this side. वेक्टर को माइनस है मतलब वेक्टर को नेगेटिव करते तो पलटना पड़ता है, वेक्टर इधर लाना पड़ेगा, ऐसा माइनस है तो VB has come this side, यहाँ पे 12 और this is 35. Tan theta will be 12 by 35. That is coming close to 19 degree. If this is theta, तो opposite angle theta. So she has to bend the umbrella at angle 90 from vertical towards west. इधर west से देखो. So from vertical towards west. All right. Now with this
comparison with this numerical, what it is written in example 4.1, the boy experiences the resultant, that is vector sum of two velocities. While in this example, woman experiences the velocity of plane relative to bicycle, that is the vector difference. Relative velocity में vector difference आ रहा है of two velocities. Vector difference of two velocities, VR minus VB. तो VR minus VB का जो एंगल आएगा with the vertical same angle, तो उसको अम्ब्रेला होल्ड करना है in particular direction. मीन्स जिस तरफ मूव कर रहे हैं उधर ही बेंड करना पड़ता है. Faster she moves, more angles she has to make. All right, no problem. So these Yes, are the two Yes, sir. dimension relative motion. रेन के हो गए, अभी रिवर क्या देखना पड़ेगा. Some questions are there, boat and river problem. So we'll see the theory first, then we'll solve the numerical. Clear? Sir, can you repeat this? I was listening, sir. इसमें देखो ये वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये वाला बिल्कुल सेम है. ये वाला कौन सा था? दिस वन एग्जैक्टली सेम. वुमन वाज बाइसाइक्लिंग है ना, तो साउथ की तरफ जा रही थी, तो इसमें 30 ये 10 है, बिल्कुल सेम है. Rain is falling vertically with 35 and she is moving towards west with the speed 12. So she should hold the umbrella in the direction of relative velocity of rain with respect to bicycle. That is VRB, VR minus VB. So VB is this side, minus of vector will be turned in opposite direction. So one vector is this, rain vector is this. इसको इधर ले आओ पहले तो. VB will be this 12, magnitude 12 है, इसका magnitude 35 है. Tan theta will be 12 by 35, that is 0.343. If we see the log table, in that angle will be 19 degree. तो 19 degree, ये 19 आ जाएगा. तो थीटा इधर से है, तो ये भी थीटा, इधर से भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल है ना. तो 19 degree from the vertical towards the west, इधर वेस्ट है. That's what. तो रिलेटिव वेलोसिटी में, रिलेटिव मोशन में वेक्टर डिफरेंस मैटर करता है, और रिजल्टेंट मोशन में जैसे विंड वाज ब्लोइंग, तो उसमें वेक्टर सम मैटर करता है. बॉय वाला जो क्वेश्चन था इससे पिछला वाला, विंड वाज ब्लोइंग, इन दैट वी हैव डन वेक्टर सम इन दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स. और जब दैट वुमन इज मूविंग, देन relative velocity of bicycle, that is the vector difference is used. Clear? Okay. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन दो JEE student can do this question. इसका पिक ले सकते हैं. This is for JEE only, not even for NEET. All right. We can discuss it in the next class, at the end of the class, not beginning. Done? Just a second, sir. Yeah. Done, sir. Okay. So now there are two problems, boat and river problem in NCERT book. तो उसकी थियरी थोड़ी देखनी पड़ेगी, नहीं अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे तो यू विल जस्ट नॉट अंडरस्टैंड. तो बोट एंड रिवर प्रॉब्लम थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं. सपोज रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, VR is the velocity of river, that is velocity of flow of river, वाटर करंट की जो वेलोसिटी है उसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इफ आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो ग्राउंड से होती है. तो ग्राउंड से देख रहे हैं कोई, तो रिवर इज फ्लोइंग विद दिस वेलोसिटी. VB इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड से हम देखेंगे बोट को,
तो VB वेलोसिटी उसकी दिखेगी हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. VBR is velocity of boat with respect to river. VBR is what? Velocity of boat with respect to river. It is also called velocity of boat in still water. In still water, STILL. It is also called, VBR is also known as velocity of boat in still water. Two names are there, you have to know. So VBR will be what? If you want to write the according to relative motion formula, VBR will be nothing but VB, vector VB minus VR. जो सबस्क्रिप्ट पहले आया उसकी वेलोसिटी पहले होती है. R is the velocity of boat with respect to river is VB minus VR. है ना? So this is the basic concept. मतलब ये जो है अगर VBR is given so and VR is given, you can find out VB. If velocity of boat is given as seen from the ground, velocity of river as seen from the ground, then you can find out VBR. Velocity of boat with respect to river, you can just find out. Out of 3 terms, 2 will be given to you, 1 will be asked. Only thing you have to remember the vector formula, then vector subtraction you have to do here. Getting or not? For example, if velocity of river is 2I cap plus 3J cap and velocity of boat in the still water is minus I cap minus 2J cap, find the magnitude of velocity of boat with respect to ground. So VR is given, ये VR है और ये क्या है? Okay, let us write the things what is given. Let us write it. Let us solve it. You can solve it. Just solve it and tell me. Then I will solve. You solve yourself first. Let's see what is the answer coming. VR is given. VBR is also given. Velocity of boat with respect to VB निकालना है, magnitude निकालना है उसका ना. So we'll write the formula VBR is VB minus VR. So इसको VB will be nothing but minus VR को इधर shift कर दो. Then we can put the value. After shifting, we can put the value. So VBR plus VR. So now we can put the value. Sir, VBR is root 2. root 2 error. ठीक है जो भी है. So VBR is minus I cap minus 2J cap plus VR is 2I cap plus 3J cap. So if you simplify, it is coming I cap plus J cap. इसका मॉड निकालना है. ये वेक्टर फॉर्म में आ गया. मॉड निकालने के लिए कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर ऐड कर देते हैं, आंसर हो जाता है. बिकॉज 90 डिग्री पे है ये कोएफिशिएंट, ये I cap J cap, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से मैच होता है. कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो वो रिजल्टेंट मिल जाता है. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो √2 मीटर पर सेकेंड. ग्राउंड से कोई देखेगा बोर्ड की वेलोसिटी √2 मींस 1.414 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रही होगी. ये डायरेक्शन ऐसे जा रही होगी. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया. तो आई कैप प्लस जे कैप ऐसे कहीं आएगा 45 डिग्री एंगल पर. यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर देखेगा, सपोज रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो बोट ऐसे जाती हुई दिखेगी 45. एक्चुअल में किधर जा रही थी? ये वाटर के रिस्पेक्ट में किधर जा रही है? ऐसे वाटर के रिस्पेक्ट में इधर जा रही. तो वाटर करंट उसको ऐसे पुश कर रहा है, इस तरह पुश कर रहा है. तो रिजल्ट दोनों का जो वेक्टर समय इधर आ रहा है. तो ग्राउंड से कोई देखेगा तो उसको ऐसे दिखेगा.
और जो बोटमैन देखेगा वो तो बोलेगा मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, वाटर की रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा हूँ, बट वाटर भी उसको पुश कर रही है, तो ऐसे ऐसे कुछ आएगा। Shall I make the diagram? देखो रफ डायग्राम ऐसे कुछ आएगा, देखो ये ऐसा। तो रिवर तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे है कुछ, और रिवर ऐसे फ्लो हो रही। नहीं, रिवर का भी एंगल नहीं, रिवर का भी कुछ ऐसे। एक मिनट, रिवर का थोड़ा सा ऐसे बनानी पड़ेगी हमें रिवर। एक मिनट, जस्ट अभी आगे डायग्राम है वैसे तो। इनफैक्ट इसमें क्या हो रहा है, रिवर की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बोटमैन कुछ ऐसे जा रहा है, रिवर ऐसे जा रही है, और यहाँ से ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा आई कब्जे का। तो आगे डायग्राम है वैसे, इसको छोड़ देते हैं, वी डोंट वांट टू मेक द डायग्राम। ओके, दिस क्वेश्चन वी डोंट वांट टू डू। देखो, टाइम टू क्रॉस द रिवर, एक क्वेश्चन में उन्होंने टाइम पूछा है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, एंड डिप वगैरह भी कुछ पूछते कभी कभी। देखिए, रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड बोटमैन इज गोइंग लाइक दिस। उसको क्रॉस करने में, दूसरी तरफ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है हाउ ही इज गोइंग लाइक दिस और गोइंग लाइक दिस और गोइंग लाइक दिस, डिपेंडिंग अपॉन इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो वी आर टेकिंग दिस सिचुएशन, boatman is going like this with respect to water, VBR. Okay, let be the width of the river. ये width है उसकी, river की। theta is the angle of VBR with the normal to the flow of water. Water is flowing like this. यहाँ पे देखो VR दिया, river is flowing left to right in this diagram. इस तरफ से इधर फ्लो हो रही है VR। Now component of VBR normal to the flow, देखो इसका जो कंपोनेंट है नॉर्मल टू द फ्लो, वो उसको हेल्प करेगा क्रॉस करने में, VBR। तो नॉर्मल टू द फ्लो कंपोनेंट कितना है ना, VBR cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला। टाइम टू क्रॉस T इज इक्वल टू विड्थ। विड्थ की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, विड्थ ये भी है, उसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, दैट विल हेल्प अस टू क्रॉस द विड्थ B। तो B विड्थ की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हेल्प करता है क्रॉस करने में। तो B विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ। अगर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी इधर ही लेनी पड़ेगी ना हमें, ये थोड़ी ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कवर करना है, तो ये कंपोनेंट VBR cos थीटा, तो वो उस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ रहा है। अगर उस तरफ कंपोनेंट कुछ ना कुछ होगा तभी तो क्रॉस कर पाएंगे। आर यू एग्रीड और नॉट? उस तरफ कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, उतना जल्दी क्रॉस होगा। जितना कम कंपोनेंट है, जितना तुम ऐसे जाओगे कम कंपोनेंट आएगा, ज्यादा टाइम लगेगा दूसरी तरफ पहुंचने में। यस सर, यस सर। ठीक है, पहुंचने में प्रॉब्लम, यहाँ भी पहुंच सकते हैं, यहाँ भी पहुंच सकते हैं, यहाँ भी पहुंच सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट द रिवर इज फ्लोइंग। बट प्रैक्टिकली देखा जाए उसको, ये डायरेक्शन, मतलब ये विड्थ क्रॉस करनी है तो ये वाला कंपोनेंट उसको हेल्प करेगा। और इधर पहुंच रहा है या इधर पहुंच रहा है, वो उसको VR या ये वाले कंपोनेंट अफेक्ट करेंगे। उसको कहाँ पे पहुंचेगा अदर साइड में, वो ये वाले कंपोनेंट उसको डिसाइड करेंगे किस तरफ पहुंच रहा है। बट विड्थ क्रॉस करनी है तो ये वाला कंपोनेंट डिसाइड करेगा कि कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ, दैट इज VBR cos थीटा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अभी वो अपोजिट पॉइंट से कितना आगे जाके पहुंच, सपोज ऐसे जा रहा था वो और रिवर ऐसे फ्लो हो रही, तो अब यहाँ पे पहुंचा जाके, वो इधर भी पहुंच सकते हैं, इधर वी डोंट नो क्या सिचुएशन है, यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ भी पहुंच सकता है।
तो हमने एक सिचुएशन ली, अपोजिट पॉइंट से इधर x डिस्टेंस पर पहुंचा, c पर पहुंचा, वो ऐसे जा रहा था, रिवर ऐसे फ्लो हो रही थी, तो वो पहुंचा कहाँ पर, इधर। रिवर का थोड़ा सा मैं यहाँ मार्क कर दूं, रिवर का कंपोनेंट ये देखो, इतना रिवर की वेलोसिटी, ठीक है। तो सी पर पहुंचा, तो अपोजिट पॉइंट से कितना लेफ्ट या राइट पहुंचा, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। बी द अपोजिट पॉइंट, ये देखो बी इज द अपोजिट पॉइंट, यहां से स्टार्ट किया था ऐसे, सी द पॉइंट वेयर ही रीचेस, सी पर पहुंच गया, तो ड्रिफ्ट विल बी बी सी, एक्स जो ड्रिफ्ट होगी, बी सी विल बी ड्रिफ्ट, उसको एक्स से सिंबल दिया हमने। तो वो कौन डिसाइड करेगा, एक्स, एक्स जो है कितना होगा, वो ये वाले कंपोनेंट, देखो रिवर का वेलोसिटी तो इधर है, वो तो इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो बोट का वीबीआर का ये कंपोनेंट उसको माइनस करा रहा है, ये वाला वेलोसिटी रिवर उसको इधर पुश कर रही है, और ये वाला कंपोनेंट उसको अपोजिट ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट माइनस करना पड़ेगा। और टाइम, टाइम तो जो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा, जो टाइम हमने यहाँ से निकाला है, वही टाइम इसके लिए 2 डायमेंशन मोशन है ना, एक तो डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, एक ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों का टाइम तो सेम रहेगा। यहाँ पहुंच गया, टाइम टी लिया उसने, तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दोनों के लिए टाइम टी रहने वाला है ना, दोनों एक साथ कवर हो रहे हैं ना, एक्स एंड वाई, तो दोनों सेम टाइम में हो रहे हैं। तो टाइम टेकन इज टी, तो टी की वैल्यू हो, ये पुट कर देंगे बाद में, तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। कभी कभी ड्रिफ्ट वर्ड यूज नहीं करते, वो बोलेंगे अपोजिट पॉइंट से कितना कितना आगे जाके पहुंचा वो, हाउ मच ahead of the opposite point boatman is reaching or swimmer is reaching, है ना, तो लाइक दिस, तो उसमें वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू टी आएगा, ठीक है। तो नाउ ये 2 पॉइंट क्वेश्चन में पूछे गए अपने एनसीईआरटी बुक में, विदाउट मेंशनिंग द नेम ड्रिफ्ट एंड ऑल, उन्होंने बोला अपोजिट पॉइंट में कहा, तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली समटाइम्स सम बुक्स राइट ड्रिफ्ट, तो वी आर राइटिंग दिस ड्रिफ्ट, ठीक है। नाउ मिनिमम टाइम टू क्रॉस, अगर उसको जल्दी पहुंचना है अपोजिट साइड में, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी उसको ये वाली जो है इधर ही लगानी पड़ेगी, फुल वेलोसिटी से इधर जाना पड़ेगा उसको। इन अदर वर्ड्स थीटा शुड बी 0, थीटा शुड बी 0, पूरी बोर्ड की पावर इधर लगानी पड़ेगी उसको, जल्दी पहुंचना है, थीटा शुड बी 0, आई मीन ऐसे जाना पड़ेगा। थीटा कहाँ से मेजर कर रहे हैं, नॉर्मल के साथ मेजर कर रहे हैं, तो मिनिमम टाइम के लिए टाइम मिनिमम होगा cos थीटा शुड बी मैक्सिमम, दैट इज 1, थीटा शुड बी 0, उसको ऐसे जाना पड़ेगा, बट रिवर उसको पुश करेगी, रिवर क्या कर रही है, इधर पुश लगा रही, वो अपनी डायरेक्शन तो इधर ही रखने की कोशिश कर रहा है, बट रिवर उसको पुश कर रही, यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट द रिवर इज फ्लोइंग, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे रखना पड़ेगा उसको, नॉर्मल टू द रिवर, बिकॉज थीटा 0 लिया है ना हमने। तो मिनिमम टाइम इज b अपॉन VBR, cos थीटा मैक्सिमम 1 कर दो उसको, तो ऑटोमेटिकली टाइम मिनिमम हो जाएगा, गेटिंग और नॉट। तो उसको जल्दी जाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, देखो ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं आपको एक साथ, जल्दी पहुंचना है तो पूरी पावर इधर झोंकनी पड़ेगी उसको ऐसे, लेकिन लीवर भी इधर फ्लो हो रही है, उसको पुश करती रहेगी थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पहुंचेगा, लेकिन टाइम विल बी मिनिमम। अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पहुंच सकता है, बट टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको पावर ऐसे डायरेक्शन ऐसे रखनी पड़ेगी जल्दी पहुंचने के लिए। गॉट इट? तो ये 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें तुम्हें काम आ सकते हैं। We'll see the NCERT book numerical after this. तो जैसे ये क्वेश्चन है देखो, in which direction boat should move to cross in minimum time? तो normal to the flow, क्या आंसर होगा? नॉर्मल टू फ्लो, अभी हमने देखा, ये आ गया नॉर्मल टू फ्लो ऑफ रिवर। फाइंड द ड्रिफ्ट इन केस ऑफ मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितनी होगी ये निकालनी है। अच्छा यहाँ पे थीटा कितना आएगा, थीटा विल बी 0, ड्रिफ्ट निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन 0
एंगल तो 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा तो हम नॉर्मल के साथ ले रहे हैं ना। कैन यू सी है, नॉर्मल के साथ एंगल। अभी ऐसे ही जा रहा है तो थीटा 0 हो गया, ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। और टी की वैल्यू ये आएगी बी अपॉन वी बी आर। तो कितना आएगा ये, वी आर इंटू बी अपॉन वी बी आर, ये आएगा। इतनी ड्रिफ्ट आ जाएगी, ये टर्म पूरा 0 हो गया तो ये वाला टाइम, ये वाला मिनिमम के लिए ये वाला टाइम। ये दोनों एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये वाला तो वाला एक्स्ट्रा पॉइंट में समझ लो। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। ये वाला क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन पे चलते। देखो, मैन कैन स्विम विद द स्पीड 4 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट की जगह वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस 1 किलोमीटर, विड्थ दी हुई है बी। इफ रिवर की स्पीड वी आर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स his strokes normal to the flow of river। यही वाला केस है ना, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर। तो ये आ जाएगा फिर बी अपॉन वी बी आर। और हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो, ये वाला आ जाएगा पॉइंट इन दैट केस। तो ये और ये देखो, let me show you the solution। पहले लिख लिया हमने पॉइंट्स जो दिए थे। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4 दिया है, टाइम निकालना है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। विड्थ कितनी दी है 1 किलोमीटर, रिवर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये द मैन शुड स्विम नॉर्मल टू फ्लो, नहीं, स्विमिंग नॉर्मल टू फ्लो is given, they are given, he makes strokes normal to the river current। मिनिमम टाइम लगने वाला, अभी हमें पता लग गया पूरा का पूरा पूरी एनर्जी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है। तो वी विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। 4 दिया हुआ नॉर्मल टू फ्लो है पूरा का पूरा। यहाँ पे cos थीटा भी आता है ना, cos थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो 1/4 आवर्स, किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आवर्स दैट इज 15 मिनट्स। 15 मिनट आंसर दिया। कैन यू सी द आंसर? यस, मिनट में दिया तो मिनट में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है, ठीक है। अरे देयर एंड डिफ्ट निकालनी। तो डिफ्ट में देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये तो 0 ही हो गया पूरा टर्म, तो वी आर ही बचा है, वी आर इंटू टाइम। एक मिनट, यहाँ पे पहले हम टाइम के टर्म्स में निकाल दो, ये याद रखना आसान रहेगा। टाइम की वैल्यू बाद में पुट कर सकते हैं। तो वी आर इंटू टी, ठीक है। तो बाद में विच विल बी इक्वल टू वी आर इंटू टी। कितने टी हमने इसमें तो निकाला ही हुआ है, अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो ये वाली पुट कर सकते हैं वी बी आर। यहाँ से हमने देखो निकाला है ये वाला, टाइम कैलकुलेट हो गया तो इसलिए हमने सीधा पुट कर दिया। देखो, तो वी आर इज 3 और टी इज 1/4 आवर्स, यहाँ पे निकाला हमने। तो आवर्स विल गेट कैंसल, तो इट विल बी 3/4 किलोमीटर, दैट इज 750 मीटर। तो 7 मीटर में दिया आंसर इसका। Can you see it or not? देखो, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो हमने थियरी पढ़ी और उसी को सीधा अप्लाई कर दिया। ये पॉइंट था कि ये पॉइंट, दोनों एक साथ देख सकते हो पढ़ने से, ठीक है। सर या सर आप ड्रिफ्ट का दिखा सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो जाता। ड्रिफ्ट का देखो यहाँ पे लिखा है, ड्रिफ्ट मतलब अपोजिट पॉइंट से कितना लेफ्ट या राइट, इधर चला गया तो प्लस लिखेंगे, माइनस आ गई ड्रिफ्ट तो मतलब ये कंपोनेंट अगर बड़ा हो गया और रिवर की वेलोसिटी कम हो गई
तो इधर कहीं पहुंचेगा, वो यहाँ कहीं पहुंचेगा। माइनस आ गया मतलब अपोजिट पॉइंट से लेफ्ट जा रहा है, प्लस आ रहा है तो इधर जा रहा है। तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी, बी इज अपोजिट पॉइंट सी। एक्सप्लेन करना था कि लिखना था? लिखना था सर, लिखना था सर। ओके, लिख लो। डन सर, डन सर। देखो इसमें क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछ सकते थे। हाँ, ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा और एक दो पॉइंट और देख लेते हैं ना, एक्स्ट्रा पॉइंट में ही है ये। देखो कंडीशन फॉर मिनिमम डिफ्ट, मिनिमम डिफ्ट मतलब ये बी पर पहुंच जाए, जीरो डिफ्ट हो जाएगी, है ना? अगर वो उसने कुछ एंगल ऐसे रखा, रिवर वेलोसिटी के साथ ऐसे एडजस्ट हो गया, तो वेलोसिटी आप ये यहाँ पहुंच जाएगा बी। तो मिनिमम डिफ्ट के लिए एक्स शुड बी जीरो, डिफ्ट का फार्मूला देखो, मिनिमम फॉर मिनिमम डिफ्ट एक्स शुड बी जीरो, है ना? तो जीरो पुट करके सॉल्व कर लो। तो एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ पे सॉल्व किया, साइन थीटा के लिए सॉल्व किया, तो वी आर अपॉन वी बी आर, वी आर अपॉन वी बी आर मतलब रिवर की जो वेलोसिटी है उसको हमने वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर डिवाइड कर देंगे, जो भी एंगल आएगा, थीटा, थीटा नॉर्मल से ही रहता है एंगल हमेशा। डिफ्ट, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है देखो, अगर वी आर बड़ा हो जाए तो जीरो डिफ्ट नहीं मिलेगी, रिवर बहुत फास्ट जा रही है, तो वैसे यार रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो यहाँ कहीं पे पहुंचेंगे जीरो डिफ्ट, जीरो डिफ्ट कब मिल सकती है, जब आपको वी आर छोटा है वी बी आर बड़ा है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, है ना? तो यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी नोट में, डिफ्ट विल नॉट बी जीरो इफ वी आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी बी आर, साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। रिवर की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, बोट की वेलोसिटी से वी बी आर ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब जाके अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, नहीं तो आगे कहीं यहाँ पे पहुंचेंगे या और आगे पहुंचेंगे या यहाँ पहुंचेंगे, जीरो डिफ्ट पॉसिबल नहीं होगी इन दैट केस। अच्छा चलो, अगर वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो मिनिमम डिफ्ट तो कुछ ना कुछ, जीरो नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिनिमम हो सकती है, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमा लगाना पड़ता है, इसमें हमने पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमा। इन दैट केस ये ऊपर आ जाएगा, वी बी आर बड़ा है ना, इन दैट केस ये रिजल्ट आता है, वी बी आर अपॉन वी आर, अगर वी बी आर बड़ा है तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए अगर वी बी आर बड़ा है तो पलट दो इन दोनों को, तो वो कंडीशन के साथ जाना चाहिए उसको, एंगल उतना होना चाहिए, तो वो थोड़ा हायर ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा से निकालना पड़ता है, तो दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग नाउ, बट हमने तुम्हें क्लू दे दिया, वीबीआर अगर बड़ा है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, जो भी एंगल आएगा उसके अकॉर्डिंग मिनिमम ड्रिफ्ट होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके या यहाँ पे जाके पहुंचेगा, जीरो तो नहीं होगा बट बी के आसपास मिनिमम पॉसिबल पहुंच सकता है अगर वीबीआर बड़ा है तो, नहीं वी आर बड़ा है तो वी आर को नीचे लाना पड़ेगा, फिर वीबीआर को ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सोच समझ के आंसर दो। ओके, क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे यू कैन नोट डाउन, एक बार पहले नोट कर लो फिर देखते हैं यहाँ पे करना है कि नहीं करना।
म्यूट कर लो, किसका हाल है? कंचन, सॉरी, पोस्ट डिस्टर्बेंस इज कमिंग, प्लीज म्यूट योर what is called audio. देखो, if velocity of flow of river is 5 meter per second and velocity of boat in the still water is 5 to 2 meter per second, in which direction boatman should move with respect to flow of river to obtain zero drift? जीरो ड्रिफ्ट के लिए कौन सी डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर उसको जाना चाहिए जीरो ड्रिफ्ट? अभी जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन तो हमने पढ़ ली है। कितने एंगल पे जाना चाहिए? कितने एंगल पे जाना चाहिए? Why can't we use this condition? ये वाली कंडीशन यूज कर सकते नहीं? 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो ठीक से। वी आर इज 5 और वी बी आर इज 5√2। Therefore theta is 45। आंसर क्या होगा बोलो अभी? What should be the answer? किधर से पूछा है? With respect to flow of river, इसके 135। यहाँ से वी आर इधर है, ऐसे दिखाया है ना, यहाँ से या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, 90 ऑलरेडी है प्लस थीटा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 90 प्लस 45। नॉर्मल, ये विद नॉर्मल आया, हमें नॉर्मल से नहीं चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर विच इज टुवर्ड्स राइट, तो राइट साइड से इधर से 90 ऑलरेडी है और प्लस थीटा, तो कितना आ रहा है? 135 है ना। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है कभी, पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन अगर आ गया, यू हैव टू बी केयरफुल। क्लियर? बोले सबको समझ में आ गया ये कंडीशन फॉर मिनिमम डिप्थ और जीरो डिप्थ? नो प्रॉब्लम, नो डाउट? नो सर, नो No, सर। sir. No, sir. ओके, नो डाउट। ओके, तो ये हो गया आपके कंप्लीट। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है एक डिफ्ट वेलोसिटी का, आई मीन सॉरी, ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक क्वेश्चन दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। देखो, इन हार्बर विंड इज blowing at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर विंड हो रही है, एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, बोट के ऊपर लगा के रखते हैं ना फ्लैग, एंकर्ड इन द हार्बर, बोट जो है इट इज एंकर्ड इन द हार्बर, इट इज एट रेस्ट, फ्लैटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो उसका जो फ्लैग है इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो विंड भी इधर ही होगी। अगर बोट रेस्ट पर है तो जिधर विंड होती है उधर ही फ्लैग जो है जाता है, उस तरफ ही वो होगा, फ्लैटर करेगा। इफ द बोट स्टार्ट मूविंग एट द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, इधर जा रही है, अभी बोट इधर जाने लगी,
what is the direction of flag on the mast of the boat? तो फ्लैग की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लैग विल नाउ फ्लटर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. पहले भी विंड की डायरेक्शन में था with respect to boat. Now also it will be in the direct flag will be in the direction of wind with respect to boat. पहले तो बोट रेस्ट पर थी, विंड जो है बोट के रिस्पेक्ट में इधर फ्लो हो रही थी, बट अभी बोट स्टार्टेड मूविंग. अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? वी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालना पड़ेगा. ये समझने का की पॉइंट ये है इसका. देखो व्हाट द की पॉइंट आपको याद रखना है. फ्लैग हमेशा, फ्लैग ऑलवेज will flutter in the direction of wind with respect to boat. This is a key point. Are you getting? Flag हमेशा wind की डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, है ना, with respect to boat. बोट के रिस्पेक्ट में फ्लैग विंड किधर जा रही, उधर ही फ्लैग की डायरेक्शन हो जाएगी. तो बोट वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालना है. तो VW माइनस VB. तो VW माइनस VB. अभी माइनस बोट की वेलोसिटी को माइनस करना है, इधर आ जाएगी बोट की वेलोसिटी. अपोजिट करना है ना, माइनस हो गया ना ये. इट इज द वेक्टर सम ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं ना, वेक्टर सम ऑफ विंड वेलोसिटी प्लस नेगेटिव ऑफ बोट वेलोसिटी. बोट किधर जा रही? नॉर्थ में, तो माइनस किधर हो जाएगा? पीछे. अभी दो वेक्टर मिल गए. देखो एक वेक्टर ये है आपका, और विंड जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रही? इधर जा रही 45 डिग्री एंगल पर. तो इन दोनों का वेक्टर कुछ ऐसे आएगा, वेक्टर सम. विंड की वेलोसिटी ये है, विंड की वेलोसिटी क्या है? इधर ही है, वो फिक्स है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर ही फ्लो हो रही है. और बोट के रिस्पेक्ट में बोट इधर जा रही, तो उनका वेक्टर सम ये आएगा. तो ये एंगल मिल जाए, अल्फा मिल जाए हमें. क्या मिल जाए? अल्फा. तो वही डायरेक्शन हो जाएगी, है ना. एक वेक्टर ये है, देखो ये वेक्टर ए हो गया तुम्हारा, और ये दूसरा वेक्टर बी हो गया. ए के साथ एंगल अल्फा, टेन अल्फा याद है? टेन अल्फा का फॉर्मूला बताओ. B sin theta upon A plus B cos theta. ऊपर ए साइन, इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो ये ए है, ये बी अज्यूम कर लो. तो ए के साथ एंगल निकालना है. तो टेन थीटा वाला फार्मूला अगर देखो याद है तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा है कहीं पर. ओके, सी रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट हो गया दोनों वेक्टर का. ये ए एंड बी का रिजल्टेंट इधर, यही डायरेक्शन होगी, यही हमें चाहिए. विंड के साथ कितना एंगल आ रहा है. तो टेन अल्फा का फॉर्मूला याद है? बी साइन थीटा. तुमने ए साइन थीटा बोला क्या? ऐसा था ना? B sin theta बोला सर. B sin बी theta साइन थीटा बोला. हाँ ठीक है, बी साइन थीटा ये था, ये अल्फा था, ये ए था, और ये बी कॉस थीटा था. याद है? टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. तो अल्फा इज द एंगल विद ए, अल्फा इज द एंगल विद ए. तो एक देखो ये टोटल, अच्छा दोनों वेक्टर के बीच में टोटल एंगल कितना होगा? तो ये 45 है, तो ये थीटा जो है दोनों वेक्टर के बीच में 135 हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों वेक्टर के बीच में 135. तो बी की वैल्यू लिख ली. बी हमने यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है 51, विंड की वेलोसिटी 72 है. तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है 51 साइन 130, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 135 है, नीचे भी 135. तो 135 की वैल्यू 1/√2 होती है साइन, और 1/√2 0.707 होता है. रैशनलाइज कर देंगे तो 0.707, और इधर cos 135 की वैल्यू माइनस होती, माइनस आगे आ गया, और 0.707. इसको और सॉल्व किया तो ये आ रहा है 36.7, ऊपर 36.4. ये क्लोज वैल्यूज है. यहाँ पर ये राउंड ऑफ की हुई है थोड़ी सी. इट इज कमिंग 1.01. 1.01 is close to 1. It is close to 1. तो अल्फा इज 45. अल्फा इज क्लोज टू 45. देयरफॉर उन्होंने लिखा है आंसर ड्यू ईस्ट. 45 मतलब अगर ये 45 आ गया तो ईस्ट आ जाएगी, मतलब ये ऑलमोस्ट ये लाइन ऐसे आएगी. हमने थोड़ा बड़ा एंगल दिखा दिया ईस्ट की तरफ. तो आंसर इज गिवन ईस्ट. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आंसर. ईस्ट अप्रोक्सीमेटली आंसर दिया, ईस्ट अप्रोक्सीमेटली. थोड़ा सा 1 डिग्री ज्यादा हो सकता है. क्लियर? ये लाइन में हटा देता हूँ, ऑलरेडी नीचे लिखी है ये. तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थे इसमें,
बट यू शुड नो दिस पॉइंट ऑलवेज, और वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, ये फॉर्मूला सब याद होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल tan अल्फा है तो tan अल्फा की वैल्यू, हमने जब रिजल्ट आर का डेरिवेशन किया था तो tan अल्फा का भी डेरिवेशन किया था वहां पे। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन ऑलमोस्ट इट इज डन। टुमारो वी कैन सी, नेक्स्ट क्लास वी कैन सी सर्कल मोशन पे आ जाएंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कल मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर, कुछ पूछने हैं आप लोगों को इसमें? रिलेटिव मोशन के थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं कभी कभी, कैलकुलेशन एंड ऑल, एंड कॉन्सेप्ट भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना, और वेक्टर नॉलेज भी चाहिए हमें। पर्टिकुलर रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, आज हमने क्या डिस्कस किया? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल। You have any doubt, queries, you can ask, or you have missed anything, you can just ask. मॉड में ये मैग्नीट्यूड होते हैं ऑलवेज, ये मॉड नहीं भी लगाया तभी भी मैंने आपको बताया था ये हमेशा मैग्नीट्यूड होते हैं, ये कभी माइनस नहीं हो सकते, इसलिए मैंने खास तौर से लगाया कि ये यहाँ पे आप माइनस में लिख दो इसको, क्योंकि वेक्टर में हमेशा दीज आर ऑलवेज मॉड, एंगल विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, माइनस अगर आ रहा है वो एंगल की वजह से आता है। ऑलराइट, एक जेई का क्वेश्चन दिया था, जेई स्टूडेंट कैन स्टे बैक, वो क्वेश्चन डिस्कस करके वाइंड अप कर देते हैं। एंड टुडे आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन पर्टिकुलर फॉर जेई। तुम लोगों को अगर होमवर्क नहीं है तो जस्ट यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड रिवाइज दीज थिंग्स, जो आज मैंने पढ़ाया ये थोड़ा सा भूलने के चांसेस हैं, जस्ट गो थ्रू, दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिटेन, बिकॉज 2 डायमेंशन में आगे चल के प्रॉब्लम आएंगी अगर आज तुमने रिवाइज नहीं किया तो। अच्छे से रिवाइज करो, and if you have any difficulty you can ask in the next class. This is a difficult topic in fact. All right, now noted? Okay then, जेई वाला जो होमवर्क था वो डिस्कस कर लें क्विकली। देखो ये कहाँ पर है वो, अदर्स कैन ऑप्ट आउट, अदर्स कैन लीव, जिनका हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन था आपको, हो गया था ये दिया था कि दूसरा था? ये वाला ही था। आंसर आया क्या इसका? यस इसके सर, देखो 2 में, हाँ आया, बोलो क्या है फर्स्ट पार्ट का, कैसे किया ये भी बता दो। सर हाँ मेरे को लग नहीं रहा। देखो इसके 2 मेथड है, लग नहीं रहा मतलब क्या प्रॉब्लम आई बोलो। मैंने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, डीएक्स डिफरेंशिएट नहीं, हमें क्या टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो हमें एक्स का फंक्शन टी के टर्म मिल जाए, डीएक्स बाई डी टी कर दो, एक्स को इधर ले आओ, डी टी को इधर ले आओ, इंटीग्रेट कर दो, तो इधर एक्स आ जाएगा, इधर टी आ जाएगा, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैंने ऐसे ही किया बट मैं आंसर गलत आया, कैलकुलेशन गलती हो देखो गई। यहाँ पर ये देखो इंटीग्रेशन मेथड से मैंने यहाँ पे किया, वो थोड़ा लेंदी है, देखो ये मत लिखो, इजी मेथड भी है इसका, वो इंटीग्रेशन कर दिया और ये अल्फा टी आ गया इधर, और इधर एक्स का इतना आ गया, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिल जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। और टाइम फॉर द फर्स्ट एस सेकेंड, तो इसके लिए पहले एस
एस मीटर के लिए, इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला है, एस लिख दिया, इसमें टाइम निकाल दिया, फिर उस टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का पिछले क्लास में भी था ये फार्मूला है ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है। देखो आसान मेथड देखो, इधर इजी मेथड देखो, v का रिलेशन दिया है, ठीक है, तो v का रिलेशन दिया है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो dx बाई dt। तो यहाँ पे तो x से बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें dy dx लिखना पड़ेगा, तो इधर भी dy dx लिखना पड़ेगा ऊपर भी, और dt को आगे शिफ्ट कर दिया हमने इधर। तो यहाँ पर x था, तो बैलेंस करने के लिए dy dx लिखा, ऊपर भी dx लिखा, और dt नीचे था तो dt को हमने आगे शिफ्ट कर दिया इधर। तो dx बाई dt वेलोसिटी बन गया, इसका डिफरेंशिएशन भी हो गया हमारा, तो एक्सेलरेशन आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। फिर तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं अभी हम, v इज इक्वल टू, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो v इज इक्वल टू at, a की वैल्यू ये पुट कर दी थी, तो वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हाफ at स्क्वायर, पहले तो x डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना लगा वो निकाल दिया, नहीं बोला है s डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना है, तो इसी में ही ओके अपना s के लिए हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से टाइम मिल गया s डिस्प्लेसमेंट का, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे, फिर टाइम यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया। तो इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन कम लगा, हमें अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पता लग जाता है तो काइनेमेटिक इक्वेशन में स्विच ओवर कर जाते हैं, तो उसके लिए इंटीग्रेशन नहीं करते। समझा कि नहीं? सर मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन यूज की थी क्या? यस सर। तो फिर आ जाना चाहिए। देखो आंसर ऊपर भी यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं बड़ा आंसर कर दूं। उसको फिर से प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि अभी समझ में आ गया, अगेन यू डू इट, जब 2-3 बार करेंगे फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है ये, नहीं तो फिर वही बाद में सोचना पड़ता है। तो यू हैव टू डू इट ट्वाइस एटलीस्ट विदाउट सीइंग। ठीक है, तो बाकी तो एक क्वेश्चन दिया है मैंने, उसका 2 डायमेंशन मोशन का दिया है, तो उसको करो, नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, देन यू विल गेट अदर वन। डेली एक एक भी किया तो एक लेक्चर में तो बहुत हो जाता है। No problem. Anything else you want to ask? Anybody? Okay then. Thank you. Okay, thank you, sir. End कर दूं? Okay. थैंक यू सर।